अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म इल्जाम के साथ। लाहौर में मंशियात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, लोगों की जानें निकलना शुरू हो गया। इसी तरह का दिल खराश वाकया जल्लो के इलाके में पेश आया, जहां पर दोस्त ने मंशियात की ज्यादती की वजह से दोस्त को ही कत्ल कर दिया। क्या पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई? गिरफ्तार मुलजिम ने क्या इंकशाफात किए? मकतूल के वर्सा इंसाफ की हसूल के लिए क्या दुहाइयां दे रहे हैं? और मंशियात के इस्तेमाल को कंट्रोल करने वाले इदारे कितने मुतहरिक हैं? ये तमाम चीजें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। लाहौर पुलिस रोजाना की बुनियाद पर दावा करती है कि वो न सिर्फ मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखे हुए है, बल्कि उनको गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाने में भी अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है। लेकिन आए रोज़ ऐसा कोई ना कोई वाकया पेश आ जाता है जिसके अंदर कोई ना कोई माँ अपने लफ्ते जिगर को खो बैठती है, और वो भी सिर्फ वजह जो है वो मंशियात फरोशी या मंशियात का इस्तेमाल होता है। आज जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर भी एक जवान साला लड़का जो है वो मंशियात का आदी हुआ, और उसके बाद उसकी अपने ही दोस्त जिसके साथ वो बैठकर नशा करता था उसके साथ लड़ाई हो गई और उसको कत्ल कर दिया गया। लेकिन इस तमाम के अंदर वो माँ जिसकी अपने बेटे के साथ बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी कि वो जवान हो गया है, अब काम करेगा और उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, एक मंशियात फरोश ने मंशियात बेची, जो चीज़ बुनियाद बनी, और माँ अपने बेटे से हाथ धो बैठी है। ये मंशियात कहाँ से मिलती है? इनको अपने बेटे के हवाले से ये पता था कि नहीं कि उनका बेटा मंशियात फरोशी का मंशियात का आदी है? और क्या कभी उन्होंने पुलिस से रब्ता किया था, मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की थी मंशियात फरोशों के खिलाफ कि नहीं? ये जानने के लिए हम उनके घर में आए हैं। उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है। पहले उनके चचा से बात करते हैं। मोहतरम, ये वाकया क्या हुआ है, कब का वाकया है, और आप लोगों को कैसे पता चला कि आपके भतीजे को कत्ल कर दिया गया? सर जी ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਠੇ ਆ। ਉਸ ਸਵੇਰ 7-8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀਤਾ ਕਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕਰਤੀ, ਇਕੱਤਰਤੀ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਲੜਕਾ ਬੰਦਾ ਆਦਮੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਕੂਵੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਜਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹਵੇਲੀ ਫੰਡ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਹੈਗੀ, ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਬਿੱਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੱਦਿਆ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਬਾਟਾਪੁਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ, पोस्टमार्टम हुआ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਉਸਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤਦਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ? ਉਹਦੀ 20 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਵਾਲਦ ਉਹਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਰਦੇ, ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨਿਕਲਿਆ ਮਾਂ ਕੋਲ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘਰ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀ, ਕਤਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਫਜਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਥੋੜਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈਗਾ ਘਰ 'ਚ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਥੋੜਾ ਕੁ ਫਾਸਲਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਾ ਗੱਲ, ਨਾ ਬਾਤ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬਾਟਾਪੁਰ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹਮਜ਼ਾ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ? ਹਮਜ਼ਾ 150 ਰੁਪਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਾ, ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੇ ਹੈਗੇ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਜੋ ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋ ਜਾਂ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਜੋ 100 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸਾਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਜ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਤਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ।
ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਤਰ ਦੇਣਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਨੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ 3 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਮਾੜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀ। ਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਚਲੋ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਗੁੱਜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲਾਤ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ। ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਭ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਲੀ ਜਵਾਨੀ ਚੜਨ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਭਰ ਦਿੰਦੀ, ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੇਟਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸਿਗਰਟ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਿਗਰਟ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਰਸ ਪੀਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੋ ਆਂਦੀ ਚਰਸ ਪੀਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਮੀ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਬਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ? ਨਾ ਕਿਤੇ 150 ਮਿੰਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਫਲਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਲਿਆਉਣੀ, ਮੈਂ ਸੇਵੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਸ਼ੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈਗਾ, ਕਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਦੋਂ? ਤਾਂ ਅਬ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਹੋਏ ਸੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਛ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਅਪੀਲ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇਣ ਬਸ। ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਹਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬਸ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੇਰੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਮਾੜੀ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ। भाई आप क्या करते हैं? ਜੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਪੈਂਟਾ ਸਿਲਾਈ ਕਰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ? ਤਕਰੀਬਨ 18 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ 5000। ਤੇ 13000 ਰੁਪਏ ਚ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਉਹ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਇਲਾਕਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ? ਬਸ ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਿਗਰਟ ਸਾਦਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਚਰਸ ਪੀਂਦਾ ਬਸ। ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਹੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਧੇ ਘਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ, ਕੋਈ 100-200 ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਖਾਣੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ कि तू सिगरेट भी ना पिया कर। अब आपका जवान भाई जो है वो नशे की वजह से चला गया, आपकी वालदा इंसाफ की अपील करती हैं, आप एक बाशऊर इंसान हैं, नौकरी कर रहे हैं, ये मनशियात फरोशों के खिलाफ कभी आपने देखा है कि आपके इलाके में कार्रवाई हुई हो? अगर नहीं हुई तो आप क्या हुकाम बाला से अपील करेंगे? अपील है कि सर जी उन्होंने फड़े जाए, जाने कि सजा दी जाए,
ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ। ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਾ ਨਾ ਉਧਰ ਪੁੱਫੋ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ, ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹਨੇ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਤਲ ਹਾਂਜੀ, ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਵਾਹਦ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਏ ਨੇ CI ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਜੁਰਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਗਲ 'ਚ ਤਾਰ ਪਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ने साड़ी मदद की थी। सही। आप मकतूल के बुरसा की गुफ्तगू सुन रहे हैं कि माँ जो है वो घर के किराए पे रहती है और उसको ये उम्मीद थी कि अब उसका बेटा जो है वो जवान हो गया, दूसरे भाई के साथ वो कंधे से कंधा मिला के पैसे कमाएगा और इनके ऊपर भी कोई अच्छे दिन जो है वो आएंगे। लेकिन उससे पहले ही मंशियात फरोशों ने ऐसा जहर घोला, मुआशरे के अंदर घोला हुआ है कि वो भी उसका ही आदी बन गया और मंशियात के इस्तेमाल की वजह से उसके साथी नहीं उसको कत्ल कर दिया। और साथी भी इनके बकौल कोई और नहीं है बल्कि इनका रिश्तेदार ही है जिसको ये बचपन से जानते हैं। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? मुलजिम इकबाल जुर्म अपना करता है, कहाँ से मंशियात खरीदता था, कितनी मंशियात खरीदता था और क्या मंशियात खरीदना आसान है या मुश्किल है, ये तमाम चीज़ें जानते हैं। लाहौर शहर में बहुत सी ऐसे लाशें हैं जो रोज़ाना मिलती हैं और उसको अंधा कत्ल या कोई ना कोई वजह दे के दाखिल दफ्तर उस केस को कर दिया जाता है और बेशतर केसेस के अंदर मुलजिमान का आज तक पता नहीं चल सका कि किसने किस वजह से उसको कत्ल किया है। इसी तरह का एक वाक़या बाटापुर के इलाके में पेश आया जहाँ पर एक लाश मिली 25 तारीख को 25 जून को, जिसके बाद पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जमा करा दिया और केस की तफ्तीश करनी शुरू की। थाना लेवल के ऊपर रवायती तरीकाकारी अपनाया गया और केस जो था वो दाखिल दफ्तर हो गया। लेकिन जब बुरसा को इत्मीनान ना हुआ कि उनके बेटे को किसने कत्ल किया है तो तफ्तीश को CIA नवा कोर्ट तब्दील किया गया, जहां पर CIA ने दोबारा से केस को खोला और तफ्तीश शुरू की कि मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा सके और कत्ल की जो महरिकात हैं उनका पता लगाया जा सके। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती गई पुलिस ने फॉरेंसिक एविडेंसेस, जियो फेंसिंग और तमाम जितनी टेक्निकल सपोर्ट थी उसकी मदद हासिल की तो एक मुलजिम जो था वो मंजर आम पे आया, जिसको पहले शुबह में पुलिस ने हिरासत में लिया और जब उसे तफ्तीश की गई तो मुलजिम ने इकबाल जुर्म कर लिया। मुलजिम जो है इस टाइम CIA नवाकोट की हिरासत में है। उससे जानते हैं कि उसने किस शख्स को कत्ल किया था और कत्ल की वजह क्या है। तुम्हारा नाम क्या? मशान। कहाँ के रहायशी हो? जल्लू मोड़ डगराएगा। तुमने किसको कत्ल किया? हमजा। हमजा कौन है? रिश्तेदार। क्यों कत्ल किया? नशे से। नशे से कत्ल किया? कैसे? नशे लाए थे, देता नहीं था। हाँ, फिर लड़के लड़े हैं, लड़के है नशा खो लिया। हमजा को कितने अरसे से डांटते थे तुम? बचपन में कोई जगह भी खेलते। एक ही जगह पे खेले बड़े हुए। लगता क्या था तुम्हारा वो? रिश्तेदार। क्या रिश्ता था? वालदा के मामे का बेटा। अच्छा, कितने अरसे तो नशा कर रहे सो? 3-4 हमजा को तो साल हो गया नाल नशा करते थे। अच्छा, तू कितने अरसे तो नशा कर रहे? 3-4 साल तो मैं केड़ा नशा करना? पाउडर। टीके लाना? हाँ जी। नशा लेना कितों है? मुझे लमोड़ से। पैसे कितों आंदे ने नशा लैन लई? मंग तंग मंग तक काम कुम कोई नहीं करदा? कभी लभ गया कर लिया, नहीं देना। किन्ने भैन भरा? 7। सारे नशा करदे ने? नहीं। हाँ, नहीं तू कल्ला ही करना? प्यो की करदा? बाल साहब हो तो गए। ते भरा भैन भरा तेरी मदद नहीं करदे? कदी इलाज लूज कराया? वालदा ने एक बारी कराया था, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ शेयर करना अच्छा, शुरू कर। उस दिन की होया सारे तफसील नाल दस किवें तुसी नशा लै के किन्ने दा नशा लै के सारी तफसील नाल गल दस। 5 ग्राम पाउडर लियांदा, किन्ने दा? 2500। 2500 कित्थों आया? दिहाड़ी लाई, कित्थों? चोरी की चोरी कीती? कित्थे? जल्लू की चोरी कीता सी? क्यों हो चुका हैं? क्यों हो चुका की हो चुकिया सी? अच्छा, फिर की होया? फिर वो क्यों बेचिया, बेच के नशा लिया। नशा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। फिर लड़ पे आ देख के फिर मैं नशा खो लिया। तो उत्थे ही मर गया? हाँ जी। फिर मैं घर चले गया। फिर फिर मैं घर चले गया। किन्ने अरसे बाद पुलिस ने फड़िया तेन?
5-7 दिन ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਇਸ ਕੀ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦਾ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦਦਾ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਫੜਦੇ ਸਰ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਛੱਡਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਡੀਲਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਨਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲਏਗਾ? ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਦੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਸੱਦਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ 2500 ਰੁਪਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ਾ ਕੌਣ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਜਾਂ ਹਮਜ਼ਾ? ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਏ, ਭੱਜ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਦੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਫੜਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਫੇਰ एक दिहाड़ी 2 दिहाड़ियाँ रख के छड़। आप मुलजिम की गुफ्तगू सुन रहे हैं। मुलजिम 3 साल से तकरीबन नशे का आदी है और जिस शख्स को इसने कत्ल किया वो इसका कज़न था और बचपन से इकट्ठे बड़े हुए थे। और उस दिन इन्होंने चोरी की, घी चोरी किया। घी चोरी करने के बाद घी को बेचा, उससे 2500 रुपया इनकी आमदन हुई। 2500 रुपये का इन्होंने नशा ख़रीदा 5 ग्राम। और उसके बाद उसी नशे के ऊपर इनकी लड़ाई हो गई तकसीम के ऊपर, और इसने वहाँ पे एक तार पड़ी हुई थी, उससे हमज़ा को फांसी दे के कत्ल कर दिया। किन्ने रुपए ग्राम मिलता नशा? 500। 500 रुपये ग्राम। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ 400 ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 450 ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ। ਹੁਣ 700 800 ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ? 2-3 ਦਿਨ ਕੱਢਦੇ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਗ੍ਰਾਮ 2-3 ਦਿਨ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? 7-8 ਦਿਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। अच्छा, टीके शीके भी लाना? हाँ जी। कितने लाना है? बांदा। हैं? दिखा। आप इसकी हालत देख सकते हैं। और जब इसको पुलिस ने पकड़ा है तो पुलिस वाले बता रहे थे कि इसका इतना बुरा हाल था कि उन बेचारों के इसके ऊपर अपने कितने पैसे लग गए रिकवर करने के लिए। इस केस की जो तफ्तीश कर रहे हैं उनका नाम ASI अंजुम है। अंजुम साहब से पूछते हैं। अंजुम साहब, ब्लाइंड मर्डर था ये, लाश आप लोग, लाश मिली, पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी, थाने लेवल के ऊपर कुछ नहीं हुआ, फिर तफ्तीश CI कैसे आई और फिर क्या कोर्स ऑफ एक्शन था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे DSP दानिश आसफ रांझा साहब हैं, उनको FIR मिली ब्लाइंड मर्डर की, तो उन्होंने मुझे टारगेट दिया कि इस पर वर्क करो। मैंने अपनी टीम के हमरा काफ़ी वर्क किया, मुखबरों से भी इतलाएँ ली। उसके बाद मुझे मुखबरी हुई कि ये जो मुलज़म है शान उर्फ हीरा, इसे अगर हिरासत में लिया जाए तो ये केस जो है ना ट्रेस आउट हो सकता है। इसके बुरसा को इस पे शक था? मकतूल के बुरसा को? मकतूल के बुरसा को किसी पे भी कोई शक नहीं था। पहले हो सकता है मकामी पुलिस को उन्होंने इतला दी हो, लेकिन मुझे उन्होंने कोई इन्फॉर्म नहीं किया। मैंने अपने तौर पे वर्क करके ये सारा इसको हिरासत में लिया है। फिर इसे तफ्तीश की तो इसने बताया कि नशे की वजह से हमारी लड़ाई हुई, तो वहाँ जिधर नशा बैठ के टीके लगवाने थे उधर ही कोई तार पड़ी हुई थी, उससे इसने उसको फांसी दे के मार दिया और उसकी लाश वहीं फेंक के घर चला गया। लाश जो है ना अगले दिन सुबह मकामी पुलिस ने कब्ज़े में लेके पोस्टमार्टम करा के उसके बुरसा के हवाले कर दी। आला कत्ल वगैरह इससे बरामद हो गया? और आला कत्ल तो वही तार थी जो पुलिस ने उसके गले से ही उतार के कब्जे में ली हुई है मकामी पुलिस ने। जैसे ये बता रहा है कि इसने वहाँ पे घी चोरी किया था और घी चोरी करके बेचा, उससे 2500 रुपये आया, तो इसके साथ ये सिर्फ अकेला तो नहीं होगा, ये हमजा अकेला तो नहीं होगा, और भी तो लोग होंगे जो ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ इसके साथ करते होंगे, या ये सिर्फ 2 ही थे? उधर जलो मोड़ में आप जाके देखें, काफ़ी नशेई लोग जो है ना वो उधर नशा पी के इधर उधर भटकते फिरते हैं, बीकें मांग रहे हैं। वो बीक मांगने का उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि पैसे जो इकट्ठे हो जाएं शाम को, उनका नशा लेके वो अपना नशा कर लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
आपने अंजुम साहब की गुफ्तगू सुनी। ये लम्हा फिक्रिया है कि लाहौर पुलिस को अरबों रुपए का सालाना बजट दिया जा रहा है। लाहौर पुलिस को अरबों रुपए के लागत से पीरू और डॉल्फिन फोर्स बना के दी है, जिनका काम ही सिर्फ गश्त करना है कि सड़कों पर गश्त करें और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हो रही है उनकी निशानदही करें, मुलजमान को पकड़ें। इसी तरह मुहाफिज फोर्स है जिसको एक्टिव किया गया है, डॉल्फिन, पीरू, मुकामी पुलिस, तमाम पुलिस जो है वो मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने मुलजिम के मुंह से सुना कि बासानी नशा मिल जाता है। मुलजिमान को अगर पुलिस पकड़ भी ले तो वो पैसे दे के छूट जाते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड वो बंदा कह रहा है जो ना सिर्फ नशे की लत में मुब्तला है पिछले 3 साल से, बल्कि रोज़ाना परमानेंटली नशा ख़रीदता है, कभी चोरी करके, कभी भीख मांग के, कभी कोई किसी से नशा लेके इस्तेमाल कर लेता है। और पुलिस हमारी जो है ऑपरेशन पुलिस, उसकी कारकर्दगी का ये की कलई खोल रहा है कि कोई पुलिस वाला जो है वो आज तक मंशियात फरोशों को नहीं पकड़ सका। और इस तरह ना जाने कितने लोग ही रोज़ाना नशे की कमी या नशे की दस्तयाबी ना होने की वजह से किसी ना किसी की जान ले लेते हैं। सीआई नवाकोट ने इस ब्लाइंड मर्डर के मुलजिम को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुलजिम जो इंकशाफात कर रहा है वो इंतहाई होशरबा है। उसका कहना है कि उसको मंशियात जो है वो बड़े आसानी से उसके इलाके से मिल जाती है और उसने इस मंशियात जो घी चोरी करने के बाद उसको बेचने से जो रकम मिली थी उस से मंशियात ख़रीदी थी और इसी दौरान उसका अपने कज़न के साथ झगड़ा हो गया जिस पर उसने कत्ल कर दिया। ये तमाम चीज़ें पुलिस की जब इंफॉर्मेशन ये पुलिस के पास आती है तो पुलिस क्यों ऐसे मंशियात फरोशों को अब तक पकड़ने से कासिर है, और इस केस के अंदर मजीद डेवलपमेंट क्या है उसको जानने के लिए डीएसपी सीआईए के पास हम आए हैं। दानिश साहब, वक्त के लिए शुक्रिया। मुलजिम आप लोगों ने पकड़ लिया, ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन बाद में पता चला कि मंशियात की वजह से हुआ है। अब तहकीकात में क्या बातें सामने आई हैं और तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? ये जो हमज़ा कत्ल हुआ है, हमज़ा का दोस्त था शान उर्फ हीरा। ये आपस में कज़न भी थे, बचपन के दोस्त भी थे। ये तकरीबन कोई अरसा 3 साल से दोनों कज़न मंशियात के धंधा भी करते थे, पीते भी थे, बेचते भी थे। और यहाँ पर मैं चीज़ को आपको क्लियर कर दूँ, नहर के किनारे अक्सर आपको नज़र आएंगे मंशियात पीने वाले, बेचने वाले। इसी दौरान ये चोरी भी करते हैं, छोटी मोटी चोरी की, बेचने का, उसको चीज़ों को बेचा, बेचने के अलावा फिर नशा लिया। जब इन लोगों ने नशा ख़रीदा है, टीका लगाने पर, नशा के दूसरी चीज़ें लेने पर इनका आपस में झगड़ा हुआ है। जो था शान और हीरा, इसकी कोशिश ये थी कि ये ज़्यादा नशा खुद ले। ठीक है। इसी दौरान इनके आपस में लड़ाई हुई है और लड़ाई में इसने तार के ज़रिए उसका गला दबा के उसको मार दिया। मारने के बाद मियाँ साहब का दरबार है जलों के पास, बरान सी हवेली है जहाँ पर कम लोगों का आना जाना होता है, वहाँ पर लाश फेंक दी है। लाश फेंकने के बाद ये अकेले इसने लाश फेंकी है, कोई और भी? ये अकेला था जी। जो सरदस्त की जो इन्वेस्टिगेशन अभी हुई है उसमें ये अकेला ही था। उसके बाद इसने घर के बुरसा के साथ मिल के अपने कज़न हमज़ा को तलाश शुरू कर दी है। अगले रोज़ जब लाश मिली है तो इसकी ये कोशिश थी कि ये पुलिस के ख़िलाफ़ मुद्दइयों को ये इन्फॉर्म करा कि पुलिस अभी तक इसने कातिल ट्रेस नहीं किया, पुलिस के ख़िलाफ़ रोड ब्लॉक किया जाए, और पुलिस के खिलाफ नफ़रत अंगेज़ ये बातें करता था। अच्छा। मुद्दइयों के साथ, और वहाँ पर काफ़ी हाई प्रोफाइल केस बन चुका हुआ था। ये 25 जून का वाक़या है 2020 का जी। इसकी हाई प्रोफाइल देखते हुए एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन प्लस एसपी साहब सीआईए, जिनकी हिदायत पे मुझे टास्क दिया गया, मैंने अपने तमाम वसाइल का इस्तेमाल किया, जिसमें मेरा कांस्टेबल है वाहद गुज्जर, जिसकी इस इलाके में काफ़ी अच्छी वाकफियत है और काफ़ी ज़्यादा उसने ब्रांड मर्डर केस मुझे ट्रेस करवा के दिए हैं। बहुत मेहनती, इंतहाई काबिल तमाद मेरा कांस्टेबल है। उसकी मेहनत से ये हमने केस ट्रेस किया है और दौरान तफ्तीश ये ब्रेक हो गया है कि ये काम मैंने किया। आला कत्ल जो था, तार वगैरह, वो हर चीज़ रिकवर हो चुकी हुई है।
मज़ीद इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है। मंशियात फरोशों के खिलाफ आप लोग क्या कर रहे हैं? वो कहता है कि एक फ़ोन कॉल के ऊपर जितनी मर्जी मंशियात वो ख़रीद सकते हैं और वो 3 साल से मंशियात ख़रीद रहा है। तो इलाके में पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ क्यों नहीं ये कोई कार्रवाइयाँ करती? इस तरह तो पता नहीं कितने हमजा रोज़ाना मरते होंगे। अगर ये शान और हीरे का ये बयान मैं समझता हूँ अगर ईमानदारी से देखा जाए तो ये नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं, नज़रअंदाज किया जा सकता, क्योंकि मंशियात वहाँ पर बिल्कुल मिलती है और एक कार्बन मिलती है, ये भी कहना उसका दुरुस्त है। और ये बात मैं दावे से कहता हूँ, जिस तरह CIA काम करती है इस तरह बाकी के डिपार्टमेंट हमारे जो ऑपरेशन विंग के हैं, पीरो हो गया, डॉल्फिन हो गई, बेपनाह एजेंसियाँ और भी हैं ऑपरेशन विंग की, अगर वो करें कि जड़ से ये बीमारी ख़त्म हो सकती है। लेकिन कमी की वजह से, बाकी मसरूबे की वजह से इस पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाए जितनी तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन बहुत अच्छे घरानों के लड़के जो अफराद थे, मैंने उनको देखा कि नहर किनारे वो बेचारे बगैर किसी मदद के पड़े होते हैं। तो फिर ये मंशियात फरोशों को कैसे ख़त्म किया जाएगा? ये मंशियात की जो लानत हमारे माशरे में फैलती जा रही है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? मैंने तो अपनी कोशिश, जितना मेरा हिस्सा है इसमें, इस नेक काम में मैं तो CIA डाल रही है। पिछले दिनों में मैं तकरीबन 80 मन के करीब मंशियात पकड़ी है। हाल ही में हमारी DSP साहब इकबाल टाउन में काफ़ी ज़्यादा मंशियात पकड़ी है। बाकी विंगों को भी अपना रोल प्ले अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आपने दानिश रांझा साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, आला कत्ल बरामद कर लिया गया है और मुलजिम का ये बयान जो है ये हरगिज़ झूठ ना है कि उस इलाके में मंशियात न सिर्फ मिल रही है और बल्कि बड़ी आसानी से मिल रही है, नहायत आसानी से दस्तयाब है। वहाँ पर एक फ़ोन कॉल के ऊपर मंशियात जो है वो मिल जाती है। और जो दीगर पुलिस के विंग्स हैं, शायद उनकी मसरूफियत है या शायद उनकी इतनी तवज्जो नहीं है इस तरफ, जिसकी वजह से इस किस्म के वाक़यात जो है माशरे में बहुत ज़्यादा जन्म ले रहे हैं। मंशियात इंसानी जहन के ऊपर क्या असरात मुरतब करता है और एक शख्स जिसने पूरी ज़िंदगी इस माशरे में गुजारी हो वो माशरती नॉर्म्स कैसे भूल जाता है और क्यों इतना ऑकवर्ड बिहेव करना शुरू कर देता है टुवर्ड्स अदर पीपल, यहाँ तक कि उनकी जान लेने से भी वो नहीं कतराता। ये इंसानी जहन मंशियात की वजह से क्यों इन चीज़ों के ऊपर ऐसे एक्ट्स करना शुरू कर देता है, इस चीज़ को जानने के लिए हम साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अफराज के पास आए हैं। उनसे जानेंगे कि ये कैसे मंशियात इंसानी जहन को इस हद तक मुतासिर करती है। डॉक्टर साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। एक शख्स जिसने पूरी ज़िंदगी इस माशरे में गुजारी हो, पैदा इस माशरे में हुआ हो, बड़ा इस माशरे में हुआ हो, फिर जब वो मंशियात का इस्तेमाल शुरू करता है तो कैसे इस तहत पे पहुंच जाता है कि अगर उसको मंशियात ना मिले तो किसी की जान भी ले ले? इसमें देखें, जो पहले आपने आगाज़ किया इस गुफ्तगू का कि कैसे जैसे वो माशरे में इंसान की इज़्ज़त होती है, वो लोगों से मिलता जुलता है, ठीक है, और रिस्पेक्ट होती है, लेकिन जब वो नशे की तरफ आता है तो सारे लोग उसको ताना मारते हैं, ख़ानदान वाले, कोई उसे अच्छा नहीं समझता, कोई उसकी बात के ऊपर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी वो ड्रग की तरफ रहता है। जन्नत सा सवाल है ना कि क्या मतलब उसको इतनी भी समझ नहीं है कि लोग उसे जहाज़ के नाम से पुकारते हैं, ठीक है, कोई ख़ानदान वाले उससे नाराज़ हो जाते हैं, अकेला रह जाता है इस सारे मामले में, लेकिन फिर भी वो ड्रग की तरफ चला जाता है। ये पहलू तो मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन आपने जो दूसरा पहलू उसके ऊपर है कि किसी की जान लेना, ये ज़रा एक डिफरेंट और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है। इसमें सारा कुछ हम एडिक्शन के ऊपर नहीं डाल सकते कि उसकी वजह से जान लेता है, ठीक है, क्योंकि अगर किसी जहनी बीमारी की वजह से कोई बंदा दूसरे इंसान की जान लेता है तो ये बहुत रेयर है, ठीक है। ज़ाहिर है कि हर चीज़ को हम बीमारी के खाते में अमूमन नहीं डाल सकते, ठीक है, हर बंदे का अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, अपना एक बिहेवियर पैटर्न होता है। बहरहाल मैं आपको लिंक जो है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, जनरल सी मिसाल है कि मसलन आप यहाँ पे मेरे पास आए एंट्री करने के लिए, मैं आपके पास आया, मुझे पता है कि एंट्री होना है, तैयारी की है, आए हैं, एक टाइम निकाला है, बैठे हैं, प्रॉपर ड्रेसिंग की है, ठीक है। इसी तरह आप ऑफिस में जाते हैं, ड्यूटी में जाते हैं, ख़ानदान से मिलते हैं, आप कमाते हैं, पैसा आपके हाथ में आता है, बीवी बच्चों पे खर्च करते हैं, तो उसमें आप देखें कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये इंसान को मुतहरिक रखती हैं, एक्टिव रखती हैं ये चीज़ें, कि उसको पता है कि अगर मैं मेरी नौकरी होगी तो माशरे में मेरी रिस्पेक्ट होगी।
तो अच्छी नौकरी या अच्छी रिस्पेक्ट के लिए वो मेहनत करता है, तगदो करता है, हार्ड वर्क करता है, ठीक है। इससे उसको एक अच्छी फीलिंग आती है, यूफोरिक फीलिंग आती है। अब एडिक्शन में क्या होता है, इसमें ये होता है कि वो जो यूफोरिक फीलिंग आती है, वो जिस चीज़ ने उसे मुतहरिक रखना होता है, ये जो नशावर केमिकल है ये ब्रेन में जाकर डायरेक्ट उस जगह को हिट करता है और इंसान इन सारी चीज़ों से हट के अच्छा फील करता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लाताल्लुक़ हो जाता है कि उसको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि फैमिली क्या कहती है, इस चीज़ की परवाह नहीं है, ख़ानदान क्या कहता है, इस चीज़ की परवाह नहीं है कि बच्चों का स्कोप, कैरियर क्या है। वो जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है स्टिमुलेशन के लिए, वो डायरेक्ट उसे ड्रग्स की सूरत में मिल रही होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो इन सारी चीज़ों से बेजार, इन सारी चीज़ों से लाताल्लुक़ हो जाता है, ठीक है। जो है मर्डर करने वाली बात, किसी का जान लेने वाली बात, इसमें मैंने इसलिए कहा था कि ये डायरेक्ट आप उसका सारा ब्लेम जो है हम एडिक्शन के ऊपर नहीं डाल सकते। हाँ, एडिक्शन में ये ज़रूर हो सकता है कि इसमें अग्रेशन बढ़ सकता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, ठीक है। अब देखें, गुस्से में सारे लोग जो हैं वो किसी की जान तो नहीं लेते। गुस्से में जो है वो कुछ लोग जो हैं वो खाना पीना छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे जो आजकल जैसे घर छोड़ने की वालिदैन को धमकी दे देते हैं, कुछ जो है बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं, कुछ स्मोकिंग ज़्यादा कर लेते हैं। तो ये हर बंदे की पर्सनैलिटी के मुताबिक उसका एक मुख्तलिफ रिस्पॉन्स है गुस्से का। बिल्कुल। तो गुस्से में उसने इकदाम क्या करना है, वो उसकी अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ग्रूमिंग, किसी से रिवेंज लेना नहीं लेना, वो उसका अपना है। एडिक्शन में सिर्फ ये हो सकता है कि उसमें जो गुस्से का बिहेवियर है ज़रा ज़्यादा हो जाए, उसके ऊपर रिस्पॉन्स क्या होता है, उसमें एडिक्शन का इतना रोल नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, जो मंशियात का आदी इंसान होता है वो ज़्यादा लिथार्जिक हो जाता है। अगर उसको ना मिले तो उसकी क्रेविंग जो है वो उसकी इंटेंसिटी पहले से बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो क्या ऐसा फैक्टर इंसानी जहन, क्या एक नशई को इस चीज़ पर मायल कर सकता है कि मंशियात के हसूल के लिए वो कुछ भी कर गुजरे? हाँ, देखें, जैसे मैंने पहले बात की है, अच्छा, इसमें भी दो पहलू हैं। आपके एक ही सवाल में दो पहलू हैं। एक आपने कहा कि डोज ज़्यादा करना, तो उस चीज़ को हम कहते हैं टॉलरेंस, ठीक है। टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि एक आप जब मिकदार लेते हैं तो आपका जिस्म जो है वो समझता है कि एक नई चीज़ आई है जो ज़्यादा सुला रही है या उसका इम्पेक्ट आ रहा है, तो वो बॉडी जिस्म जो है वो ख़ुद उसको कंपनसेट करता है। यानी जैसे ड्रग लेता है तो ड्रग को जिस्म से एक्सक्रीट करने की, निकालने की रफ्तार जिस्म आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ही बढ़ा देता है। तो जाहिर है कि एक ड्रग जब इंसान लेता है तो उसकी वजह से उसके अंदर क्या, हम मसलन कोई एक ड्रग की एग्जांपल ले लेते हैं, मसलन हेरोइन है, ठीक है। तो उसके अंदर लेने के साथ जिस्म में दर्दें ख़त्म हो जाती हैं, बहुत यूफोरिक इफेक्ट आता है, नींद अच्छी आती है, बहुत खुश महसूस करता है, ठीक है। लेकिन जब वो नहीं लेता, वो अवेलेबल नहीं होती, तो फिर इसका ऑपोजिट आता है। ड्रग नहीं लेगा, बहुत ज़्यादा पेन होगी, नींद नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा बेचैनी रहेगी, शिवरिंग होगी, फीवर होगा, ड्रग की क्रेविंग होगी। तो ये जो क्रेविंग, इस चीज़ को हम कहते हैं विदड्रॉल्स, ये मजबूर करते हैं उसे दोबारा ड्रग लेने के लिए। यानी बहुत सारे हमने देखा है कि एडिक्ट पेशेंट जो हैं वो ड्रग छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इन विदड्रॉल की वजह से वो छोड़ नहीं पाते। आज के प्रोग्राम में किसी हद तक ये चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि पुलिस मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ ऑपरेशंस में बहुत बुरी तरह नाकाम दिखाई देती है, जिसकी वजह से न सिर्फ लाहौर में मंशियात फरोशी अरूज पे पहुंची हुई है, बल्कि इसको इस्तेमाल करने वालों की तादाद में भी आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है। और इस तरह जिस तरह आज हमजा को कत्ल कर दिया गया, बहुत से हमजा इसी तरह नशे की ज़्यादती या नशा ना मिलने के ऊपर या नशे की तकसीम के ऊपर लड़ाई हो जाने के बाद अब्दी नींद सो जाते हैं। पुलिस अपना किरदार अदा नहीं कर रही, हुकूमत इसके लिए क्या कर रही है? वो NGOs जो हुकूमत के साथ कोलैबोरेशन में इसकी आगाही फैलाती हैं, मंशियात से रोकथाम के लिए मुहिम चलाती हैं, वो क्या कर रही हैं? ये जानने के लिए हम सैयद जुल्फ़िकार साहब के पास आए हैं, जो एक अरसा दराज से मंशियात की रोकथाम के हवाले से ना सिर्फ शहरियों में आगाही फैला रहे हैं, बल्कि हुकूमत के साथ मिलकर इस जहर को रोकने के लिए भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जुल्फ़िकार साहब, आज जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसके अंदर दो दोस्त जो रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने 1 साल पहले नशा करना शुरू किया और फिर 5 ग्राम नशा ख़रीदा। चोरी करने के बाद जो सामान बेचा उन्होंने, उसकी रकम से 5 ग्राम के ऊपर लड़ाई हुई और एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया। अब मुलजिम गिरफ्तार हो गया है। ये मंशियात इतनी आसानी से कैसे दस्तयाब है? हुकूमत, पुलिस क्या कर रही है?
आपकी पहले की बात जो पहले आपने की उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। लाहौर में इस वक्त तकरीबन जो हमारी एनुअल रिपोर्ट है उसमें के मुताबिक 120 मकामात हैं जहाँ हज़ारों लोग जो हैं एडिक्ट मेल और फीमेल। बाद मकामात जो लाहौर में हॉट स्पॉट हैं जिसमें ख़वातीन भी आके नशा करती हैं। नशा जो है ये एक आजकल के दौर में हम लोग उसको बुराई नहीं समझते। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है इसमें कोई शक नहीं वो अपना किरदार अदा करती हैं, लेकिन जो किरदार अदा करना चाहिए उसमें कमी है, इसमें कोई शक नहीं। अब जो पुलिस एज ए उसको अब इंडिविजुअल रोल देखें उसका पुलिस पे बहुत सी जिम्मेदारियां हैं माशरे की बेहतरी के लिए। ए से लेके जेड तक जितनी भी जो क्राइम है उनको डील करती है पुलिस, कंट्रोल करती है, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। लेकिन एक अहम इशू जिस पे हम सब नाकाम हैं। मैं 34-35 साल हो गए इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैं इतराफ़ करता हूँ, मैं बरमला कहता हूँ कि हमने नशे के ख़िलाफ़ वो इक़दाम न किए जो करने चाहिए। मैं बहैसियत अपनी ज़ात पे मैंने वो फ़रीज़ा अदा किया जो मैं कर सकता था जहाँ तक मेरी पहुँच थी। अब आगे जिनकी पहुँच है, अब एक दोस्त जो है वो 5 ग्राम नशे की खातर, आपने तो 5 ग्राम ज़्यादा क्वांटिटी बता दी। मैंने तो अपनी हिस्ट्री में अपनी लाइफ में जो मैं फील्ड में हूँ मैंने तो देखा है आधे ग्राम पे भी लोगों को मार दिया जाता है। अब उसने क्यों मारा? देखें आपने उसी सवाल में एक बड़ी अच्छी बात की, बड़ी अच्छी और एक हला देने वाली बात भी है कि चोरी की पहले उन्होंने। हमारे यहाँ ड्रग की वजह से, एडिक्शन की वजह से क्राइम की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हमारे लाहौर में अपर क्लास और मिडिल क्लास में नशा करने के रुझानात में वाज़ेह फ़र्क है। सही। अपर क्लास के बच्चे जब क्रिस्टलाइज का इस्तेमाल करते हैं, जब हैश, कोकीन, एस्टेसी, LSD टैबलेट जब पार्टियों में जाते हैं तो बड़े क्राइम करते हैं। उनकी जो रॉबरी है उनका क्राइम छोटा क्राइम नहीं है। जुल्फ़िकार साहब ये तो सारी चीज़ें बिल्कुल साइड पर रह जाती हैं। इस नासूर को माशरे में फैलने से रोकने के लिए जो इक़दाम किए जाने चाहिए वो भी तो होते नज़र नहीं आ रहे। जब देखें आपके पास पैसे ही नहीं है, जब आप गाड़ी चलाते हैं पेट्रोल डालने के लिए, पेट्रोल होगा गाड़ी चलेगी जी। जब आपके पास, मैं तो इतने सालों से ये बात कह रहा हूँ भाई अपने बजट में एलोकेट करें ट्रीटमेंट के लिए, रिहैब के लिए, अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को दें। जब आप अपने बजट में नहीं रखेंगे कुछ तो किस रिजल्ट लेंगे? आप सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, आप ANF के साथ काम मैं तकरीबन सारे मैं आपके सवाल का जवाब मैं सब दे देता हूँ। मैं तकरीबन मेरी कोशिश होती है कि पॉजिटिविटी को क्रिएट किया जाए। अगर मेरे जैसा बंदा नेगेटिविटी क्रिएट कर दे तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि यहाँ तो एक भूचाल आ जाए। देखिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम पॉजिटिविटी को लेके आए। अदारे जिस तरह मैंने कहा लॉ इन्फोर्समेंट में ANF है, पुलिस है, अपना किरदार अदा। पुलिस के पर्चे बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी कम है। आज जिस मुलजिम का इंटरव्यू हम करके आए हैं उस मुलजिम ने कहा कि एक फ़ोन कॉल के ऊपर ड्रग मिल जाती है और वो कहता है कि उस इलाके के अंदर मंशियात लेना बाटापुर और जल्लो के इलाके में बिल्कुल मुश्किल। आपने पिछले प्रोग्राम में मैंने DIG ऑपरेशन अशफाक साहब का भी इंटरव्यू देखा था, आपने पिछला प्रोग्राम भी ड्रग्स पे किया था। सवाल सिर्फ ये है कि क्या अगर एक बंदा हेरोइन का इस्तेमाल कर रहा है, क्रिस्टलाइज का इस्तेमाल कर रहा है, कोकीन, हैश का इस्तेमाल, क्या अगर उसको नहीं मिलती तो वो दूसरी ड्रग अल्टरनेटिव पे नहीं आ जाएगा? बागों पार्कों सड़कों पे बैठने वाले जितने भी ड्रग एडिक्ट्स हैं वो इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं सर। आप अगर एक ड्रग को खत्म करते हैं दूसरी ड्रग आ जाती है, तो इसके लिए कैसे होगी? देखिए इसके लिए मैं अक्सर बात कहता हूँ कि सबसे बड़ी जो स्टेक होल्डर वो गवर्नमेंट है, उसके बाद है पेरेंट्स, उसके बाद है तीसरे नंबर पे टीचर। जब पेरेंट्स, गवर्नमेंट अपना रोल जितना भी किरदार अदा कर रही है, लेकिन उसके बाद जो पेरेंट्स का रोल है, टीचर का रोल है, वो हम हर तरफ भूल गए सर। लेकिन ये जो एजेंसीज हैं जो मंशियात की रोकथाम के लिए काम कर रही हैं, डिमांड एंड सप्लाई को ब्रेक करना तो उनका काम है। अगर डिमांड एंड सप्लाई की चेन ब्रेक ही नहीं होगी तो ये तो सिलसिला फिर ऐसे चलता रहेगा ना। हम यानी मुआशरे को मंशियात की रोकथाम के लिए काम करने की बहुत ज़रूरत है। वालिदैन को अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है। स्कूल में बच्चों को एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन हम उन इदारों को कैसे बरी ज़िम्मा करार दे सकते हैं जिनका काम है कि इन ना सिर्फ इस नासूर को फैलने से रोकें बल्कि जो इसमें मुलविस लोग हैं उनको भी पकड़ें। जैसे आप बता रहे हैं कि आप 3 दहाइयों पे मुहित आपका तजुर्बा है,
सर इदारे इसका मतलब है काम ही नहीं कर रहे कि मंशियात तो हर गुजरते दिन के साथ लाहौर में ज़्यादा होती जा रही है। देखिए जिस तरह आबादी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है ना, ये भी चीज़ बढ़ रही है, इसमें कोई कंट्रोल करने का तरीका क्या बताएंगे आप? देखिए कंट्रोल करने वाला यही तरीका है, कोई मेरा तो ज़्यादा प्रिवेंशन पे काम है, मैं सप्लाई रिडक्शन पे तो नहीं करता, मैं ज़्यादा डिमांड रिडक्शन पे करता हूँ। सप्लाई रिडक्शन के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने अभी 3-4 साल से लागू किए हैं, पेरेंट की पेरेंटिंग स्किल पे ट्रेनिंग शुरू करवाई, टीचर की टीचिंग स्किल पे करवाई, स्कूलों में बेसिक लाइफ स्किल। अब देखें ये जो लॉकडाउन का अरसा है, अब बच्चे बाहर हैं घरों से, बच्चे स्कूल से इंस्टीट्यूशन से और घरों से बाहर है, अब आ गए हैं बाहर। अब देखें उनकी हालत, अब जब इंस्टीट्यूशन खुलेंगे तो पता चलेगा कि ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा। और लॉकडाउन के दौरान एक और, जो बच्चे बाहर नशा करते थे अपने दोस्तों के साथ मिल के बैठ के किसी के घर में किसी की गाड़ी में, जब वो घरों में कैद हो गए तो लॉकडाउन के दौरान आप बिलीव करें मुझे सैकड़ों फ़ोन आते रहे वालिदैन के, जनाब मेरा बच्चा नशा करता है, या ट्रीटमेंट सेंटर ढूंढ दे या कोई नशा हमें बता दे कहाँ से मिलेगा। सवाल सिर्फ ये है, देखें अगर एक बंदा जब क्रॉनिक एडिक्ट बन जाता है तो मैं ये कहता हूँ अक्सर ही विल नॉट रिकवर अनटिल के उसके बॉडी से आप ब्लड भी चेंज कर दें, क्योंकि उसने अपने बॉडी के लेवल को पूरा करना है। अभी जो जिस बच्चे का आपने जिक्र किया है कि उसने 5 ग्राम, पहले उन्होंने चोरी की, चोरी करने के बाद उन्होंने नशा खरीदा, क्यों 5 ग्राम जो है ना वो खुद अकेला इस्तेमाल करना चाहता है। उसकी वजह यह है कि उसकी बॉडी का लेवल जो है ये ज़्यादा हाई पोटेंसी की तरफ जा रहा था, उसे 1 ग्राम 2 ग्राम कोई भी उसकी बॉडी को वो कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रहा था। बहुत शुक्रिया। जैसे सैयद जुल्फ़िकार साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि बेशक इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हैं जिसके अंदर ANF है, पुलिस है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है, इन तमाम को पहले से बेहतर इकदाम करने की ज़रूरत है ताकि मंशियात की जो एक सप्लाई है माशरे के अंदर उसको रोका जा सके। साथ ही साथ उन्होंने वालिदैन और माशरे के किरदार के ऊपर भी बड़ा जोर दिया। उनका कहना है कि माशरे को और वालिदैन को बिलखसूस अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है, और जो बच्चे इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस हो गए हैं उनको फौरी तौर पे ट्रीटमेंट की तरफ लाना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।